السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈمی میوزیم سے وزیر ہوابازی آپ کا اپنا غلام سرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں، غلام سرور استعفیٰ دیں۔ میں کہتا ہوں میں کیوں استعفیٰ دوں؟ استعفیٰ وہ دے جو اپنے دفاع میں منہ نہ کھول سکتا ہو، استعفیٰ وہ دے جو ماتڑ سا ہو، استعفیٰ وہ دے جو مٹی کا مادو ہو، استعفیٰ وہ دے جو اپنے قائد کو بچانے کے لیے اپنا سر جھکا دے، اپنے آپ کو اپنی گردن پیش کر دے۔ تو میں اپنی گردن کیوں جھکاؤں؟ میں کوئی یہاں بال کٹانے کے لیے آیا ہوں؟ کہنا ہے سمرے املی نہیں کھائی تھی۔ میں صرف آپ کا تعارف کروا دوں، آپ انجینئر صاحب ہیں، آپ بجری کٹن والے مزدور صاحب ہیں، میں دونوں کا تعارف کرواتا ہوں، آنا ہے میں نے اس طرح۔ اچھا ایک بات بتا دیں، آپ کہتے ہیں استعفیٰ دینے والا ماتڑ ہوتا ہے، جنہوں نے استعفے دیے وہ ماتڑ ہے؟ نہ، میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں، آپ کا سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ نہیں، میری بات سنیں، مجھے یہ بات بتائیں، میں استعفیٰ کیوں دوں؟ کیا میں نے رنگ روڈ کی اوپر سے روڑے چرا کے ساؤتھ افریقہ میں سمگل کیے ہیں، یا میں نے کوئی بجری رنگ روڈ سے پٹ کے اپنے گھر کا کھرا پکا کرائے ہیں؟ بتائیں جانے دیں، بتائیں ورنہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ سر آپ کا نام میں کہتا ہوں اپنے الفاظ واپس لیں۔ حوالیاں گولیاں جیب سے رکھیا کرو۔ میرا خاندان ٹیکسلا پورا، اگر کوئی ایک ثبوت آپ کے پاس جنسیاں ہیں، آپ کے پاس ملک، آپ کے پاس حکومت، آپ کا ایک بندہ بھی یہ بتائے میرے کوئی پراپرٹی، میرا کوئی تعلق میرا بن جائے ہاؤسنگ سوسائٹی سے، ٹیکسلا سے، ہڑپا سے، منجدڑوں سے، کسی جگہ سے، میں، میرا خاندان، میری قوم، ہم سب استعفیٰ دے دیں گے۔ جن کو تاریخ کے ساتھ تھوڑا بہت بھی شغف ہوگا ان کو پتہ ہوگا پرانے وقتوں میں جو بادشاہ تھے انہوں نے چیہو رکھے ہوتے تھے، چیہو۔ جی میں تسی فواد چودھری رکھے ہے۔ اب وہ چیہو کا کام تھا وہ ٹان 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 ٹان۔ اچھا اب جو بات میں جو اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ کو میں تو لالو ایک واری چاہ دا چاہ میں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں میں جس چیز کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا تھا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، بڑا ہاتھ نہ جوڑے لگتا ہے آج بہتر لے کر رہا ہے۔ میری گزارش سننا، سارا کام آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بادشاہوں کے درباروں میں بھی چیخے یہی کام کرتے ہیں۔ یہی کام آج کل میاں کے بندے کرتے ہیں۔ کون سا؟ یہ آگے بات کرتے ہیں، کوئی اور بات کرتے ہیں تھوڑے۔ یہ جو کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خالی میں دیکھ لیں کہ کرسی میں کیل تو نہیں لگا ہوا۔ کیل ہے ایسی تو چاہ لگے سر۔ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میری وفاداری پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے، مجھے فون نہیں آتے، فون آتے ہیں، ترین گروپ کی بات کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترین گروپ اگر مجھے رابطہ کرے گا زیادہ سے زیادہ وہ مجھے کیا کہہ سکتا ہے کہ آپ وزیر بن جاؤ، تو وزیر تو میں پہلے سے ہوں، اور مجھے کیا، میں ان کو جوائن کر کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بن جاؤں گا؟ یہ جو
یہ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی. سرور صاحب اگر آپ سیاست نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ظاہر ہے سیاست اگر نہ کرتے تو پھر محبت کرتے. محبت کرتے؟ آپ سے محبت کرتے. نہیں کیا مطلب؟ مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. آئی لو پاکستان. پی ٹی آئی زندہ دلوں کی جماعت ہے. یہ پہلے مجھے وزیر کلابازی لگا رہے تھے میری زندہ دلی کو دیکھ کے, پھر مجھے وزیر وابازی لگایا. ویسے وہ زیادہ مناسب تھا جتنی آپ نے کلابازیاں لگائی ہیں نا. جناب اب اس رنگ روڈ کا کیا کرنا ہے؟ اس کا منہ کدھر کو لے کے جانا, کم رکھا پڑا ہوا ہے. رنگ روڈ کو چھوڑ, پہلے میں نے اپنا منہ ادھر کر. ننگے ڈرم پڑے ہوئے ہیں لک کے سڑک کے کنارے, کوئی بیچ میں گر گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ننگے ڈرم تے تو انہوں نے کچھے پوا کے آندا. لک تو اتنے پھرن لے ہیں. لک ایٹ می. اچھا میرا اس معاملے سے, اس سڑک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. سڑک تو اتنے ہو سکتا تہاڈا کوئی تعلق بن جائے. بنانتے دیو نا رنگ روڈ نو. تو مسئلہ کیا ہے؟ صبر کرو جب تک اس کا مسئلہ چل رہا ہے, وہ کریں گے کنسرن لوگ. سر چودھری نثار حلف اٹھا رہے ہیں, لگتا ہے وہ ہار کے بھی جیت جائیں گے. میں تو اس پہ اتنا ہی کہوں گا, نانی نے قسم کیتا برا کیتا, کر کے چھٹ دیتا اور برا کیتا. بھائی حلف جب نہیں لیا تھا حلف نہ لیتے. سیٹ کینسلیشن کے ڈر سے حلف لے رہے ہیں. سیٹ کینسلیشن وہ فلائنگ کوچ کی سیٹ ہے, ایڈوانس پیمنٹ نہ ہوئی سیٹ کینسل ہو جائے گی. راتی میں سڑک تے ستا سی جی, میرے پہنچے تھانی سپ وڑ گیا جی. 2 گھنٹے میں نچدا رہا, میری کوئی مدد نہیں کرن آیا جی. تسی کوئی کام شروع کرا دیو جی. یار کام نو چھڑ, 10 سپ نکلے گا کہ نہیں؟ 20 بجے ہی تو نکلے گا نا. اور 2 گھنٹے نچدا رہے ہیں, سپ تیرے پہنچے جو ٹولکی میں جا رہے ہیں. یہ آپ ہیں ہی اتنے موٹے, یا سانپ والے حادثے کے بعد سویلنگ ہو گئی ہے؟ ہاں جی بس پہلے میں سمارٹ سی. ساپے دے پہنچے چ بڑے تے پریشان ہو گیا کہ یہ کیڑا پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کیا صاحب کا تماشا دیکھنے لگ گئے ہیں؟ 2 ہاتھوں لوگ حکومت کی دولت لوٹ رہے ہیں. 15 ٹن سڑیا سٹوایا تھا سڑک پہ, لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں. 4 سریے بچے ہیں, اب وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دوں. نہیں وہ باری دے لا روز بلی وڑ کے دودھ پی جاندی. کام شروع کرا دیو جی. ہن تو اتھے گدڑ آنے شروع ہو گیا جی. میں مرغی پکان لگا سی, میں پانی لین گیا, پچھو گدڑ مرغی لے گئی. سر کیا وہ ٹھیک رہے ہیں؟ سوسائٹیز والوں نے بتھیرا کما لیا, اب کام شروع کروا دیں. میرا یا میرے خاندان کا یا میرے قوم کا یا پورے ٹیکس لے کا کسی کا کوئی تعلق سر آپ اگر نکل آئے کسی سوسائٹی سے تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں. سر یہ پی آئی اے نہیں ہے, بڑا اپنے فنکاری سے سارا ملبہ پائلٹوں پہ ڈال دیا تھا. یہ رنگ روڈ والے مسئلے کا تو سائنٹیفک جواب دینا پڑے گا. سائنٹیفک جواب لینا ہے تو ابھی لے لے یار. جناب سائنٹیفک جواب چل پھوٹے در. سر آپ اتنے امپلسیو کیوں ہیں؟ دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ امپلسیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ The one who is led by emotions. نہیں وہ تو دیکھیں نا, لال آپ نے جوڑا بھی پہنا ہوا ہے, گلے میں آپ نے نیکلس ڈالا ہوا ہے, بال عجیب کنگر سے کیے ہوئے ہیں. امپلسیو تو آج آپ بڑی لگ رہی ہیں. سر آپ امپلسیو کا غلط مطلب لے رہے ہیں. تو آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا مطلب لوں؟ نہیں کچھ نہیں, کوئی مطلب نہ لیں آپ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮਸਤ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ? पीटीआई में तो लोग बहुत बड़े बड़े स्टंट करते हैं सर, आप तो बहुत ही मासूम हैं. آپ کبھی ملے نا مجھے شام کے بعد, क्या? جب میں لے کے جاؤں گا نا آپ کو کسی پارک میں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا پول کے ساتھ الٹا لٹک کے, کم از کم 1.5 گھنٹہ, آپ کو پھر پتہ لگے گا. آپ جوان نہیں ہیں, جوانی کے خواب چھوڑ دیں. الٹے ٹنگے بھی انجی لگ رہے جی آڑو بڈھا ہو گئے. سر ہم کیا آپ سے کیوں امید رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں امید تو اچھی چیز ہے, امید تو آپ کو بھی رکھنی چاہیے. کیا؟ مجھ سے نہیں, ویسے روشن مستقبل کی.
ट्रालियां सुटवाई हैं बजरी की, आप समझ नहीं रहे हैं। लोग उठा के ले गए हैं, कारों के खुरे पक्के करवा लिए उन्होंने। हमारा कुछ सोचे सड़कें कैसे बनेगी। अब परसों रात 2:30 बजे बिच्छू मेरी कमीज दे विच वड़ गया। उन्हें डंग मारिया, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। मेरे एक दिन रात ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। तेरे जुस्से की कोई जगह महफूज है जहाँ अशरात ने डेरे न डाले हों? नहीं, ये तो नाके जे किरलियां बच्चे दे के नस गई। 150 दाबड़े, 35 गैंतियां, ओ यार बस कर। 13 दमूसे लोग उठा के ले गए हैं। सड़क अब मैं किससे बनवाऊं? तेरे मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है भाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंजीनियर ना सही टूबल तो भी करंट पै जाता है। सर मुझे एक बात से डर लगता है। क्या? सर अगर रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी में आपका नाम साबित हो गया तो खान साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? और तेरे मुंह में खाक, शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात अच्छी करता है। सर फिटे मुंह तेरा। सर 1200 अरब रुपए का स्कैंडल पेश किया एडिटर जनरल ने आपके खिलाफ, क्या कहेंगे आप? मैंने क्या जवाब देना है? ये खान साहब की तकरीर होने का टाइम हो गया है, ये उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो खुद जवाब देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, मुझसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? कौन सी वो चीज़ है जो हमारे काबू में नहीं आ रही? मैं आज ये बताना चाहता हूं, हम तरक्की इसलिए नहीं कर रहे कि हम मुर्गियां नहीं पाल रहे। तकरीबन 40 साल पहले ज़िया दौर में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नामी एक जमात आती है, एक सोची समझी साजिश के तहत, और देसी मुर्गी की जगह मार्केट में ब्रायलर मुर्गी ले लेती है। देसी मुर्गी गायब हो जाती है। और इसका एक्सचेंज रेट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। 92 में जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तो उस वक्त ब्रायलर मुर्गी की कीमत थी 12 रुपए किलो। नतीजा क्या हुआ? अमीर लोग चोरी की कुकड़ियों पे पलते रहे, जबकि गरीब का बच्चा ब्रायलर का मुंह देखता रह गया। अब होता क्या है, कभी भी कोई माशरा उस वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकता जब तक वहां के बच्चों में प्रोटीन, कैल्शियम इनकी कमी हो। मैं आपको बताता हूं, एक अंडे में 74% पानी होता है, 12.8% प्रोटीन होती है। अच्छा, फिर प्रोटीन की ज्यादा मिकदार अंडे की सफेदी में होती है, जो कि टोटल अंडे की प्रोटीन का 50% होता है। ये ब्रायलर का अंडा है। जबकि देसी अंडे में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। मैं जब 83 का वर्ल्ड कप हार के वापस आया तो अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए मैं हर रोज तकरीबन 4 देसी अंडे कच्चे, 1 गिलास दूध का, बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूं, आपने इस चीज को समझना है। 4 अंडों में 210 मिलीलीटर दूध फेंट कर पीता था, यानी 4 अंडे और 210 मिलीलीटर दूध पीकर 6.5 किलोमीटर भागता था। ऐसा रिजल्ट कोई मुझे ब्रायलर से ला के दिखाया। फिर उन्होंने क्या किया, 2013 के इलेक्शंस में जब ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उस वक्त देसी अंडे का एवरेज वेट 1.5 औंस था, यानी 42.5 औंस। या मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, यानी 42.5 ग्राम्स। इसके बाद क्या होता है कि उसका वजन दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। फिर 2014 में इनको यूरोपीय यूनियन से एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल स्टेटस मिल जाता है और अंडे का वजन 42.5 से नीचे आकर 39.2 ग्राम हो जाता है, यानी सीधा सीधा 3 ग्राम करप्शन फी अंडा। अब आपको पता चला कि यार रातों रात जायदादें कैसे बनती हैं। यानी सादा अल्फाज में अगर आपको बताऊं, इतना अंडा हमारे वक्तों में इतना सा रह गया। अब मुझे मिला ही इतना सा अंडा है, मैं उसको इतना कैसे करूं? जब मुर्गी दिन में 3 अंडे दे के भी फ्रेश फिर रही हो तो आप समझ जाएं आपके हक पे डाका डला है। यानी वो वक्त था जब मुर्गी अंडा दे के पूरे गांव को बताती थी कि मैंने अंडा दिया है। आज अंडा देती है, चुपके से निकल जाती है, मतलब साफ है, यानी चोरी है।
मेरे पाकिस्तानियों, इंसान तो इंसान, इस मुल्क में मुर्गियां भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एक्सरे है और इसमें नहीं, ये तो मेरा है, सॉरी। ये एक्सरे है। अब ये देखिए, ये मुर्गी का दिमाग है। इसका जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि इसकी फीड नून लीग वाले खा गए। अब मैं आपको बताता हूं हम करने क्या जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको याद होगा कि हमने बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट के तहत मैंने अपने घर में अपने हाथों से एक चीकू का दरख्त लगाया था जो कुछ तकरीबन 6 माह में 3.5 फुट का हो गया। यानी ग्रोथ रेट चेक करें, इस वक्त 10.8% सालाना चल रहा है, जो नून लीग के दौर में 2.6% था तकरीबन। यानी नून लीग के दौर में जो दरख्त लगाया वो आज मेरे गिट्टे जितना भी नहीं होगा। इन चीकू के दरख्तों पे शहद लगेगा और उस शहद की पैदावार सालाना 1.3 मिलियन टन होगी। और हमने तमाम रिच पकड़ लिए हैं। अब उन शहदों को छाटने वाला कोई नहीं है, वो हम एक्सपोर्ट करेंगे और जितना पैसा हमें मिलेगा कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। अब होगा क्या, जो पैसा कौमी खजाने में है वो हम खर्च करेंगे फलाह पे, मुर्गियों की, उनकी खुराक पूरी करेंगे। फिर लीगल प्रोसेस पे वो पैसा खर्च होगा। यानी उस पैसे से हम नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और जिससे हम 300 अरब रिकवर करना है। मेरे पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। आइंदा 2.5 सालों में मैं और कुछ करूं ना करूं, आपको इतना बड़ा अंडा जरूर दूंगा। मुर्गी से लेके, ओए आपका हक है, आपके हक पर डाका डला है, चोरी हुई है, 200 अरब जब तक वापस नहीं आएंगे चैन से नहीं बैठ सकता। अब हम करने क्या जा रहे हैं? एनक साफ कराने। चलो ओए एनक साफ कर। वक्फे के बाद खुश आमदीद अश्क जहांजाद अपने सेगमेंट किताब नाक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। किताब नाक में नाजरीन हम आज का अदब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि आज का अदब मौजू के एतबार से हम्मा जहत और मुतनव्वे है। मैं क्या छोटे होंगे कोई उर्दू की डिक्शनरी तो नहीं छप गए सो? भाई नॉवल को पढ़िए। नॉवल अपने अंदर एक तहजीब लिए होता है, मुआशरे की नफ्सियात लिए होता है। भैया महंगाई का हुण नरखनामा पढ़िए या किताब नूं पढ़िए? 3 महीने लगते एक नावल पढ़न ते बंदा काम ते ना जावे। नाले वीरे हर नावल पढ़ने वाला नहीं हुंदा, किसी च तहजीब नहीं भी हुंदी, सीधी बदतमीजी हुंदी। तो किबला आप क्या पढ़ते हैं? मैं लब दे विच पिजे हुए सीन पढ़ना वा, वो भी लब लब के। अली अकबर नातिक की लाजवाब तसनीफ कमारी वाला। आ होई ना गल, एदे च होणगे लब सीन, वो भी वाधू कमारी वाला। ओ वीरे, कुंवारी वाला नहीं, कमारी वाला। कमारी वाला बैठ के कल ही पढ़। धीरे कमारी वाला पाकपतन के करीब एक गांव का नाम है। इन्हों बड़ा जगह का नाम एक दिन लारी ने सुनिया तो नहीं, चलो भी चलो कुमारी वाले कुमारी वाले कुमारी वाले। इस कहानी में एक 10 बरस का लड़का है जामिन, वाह, जो अपने से बड़ी उम्र की लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। आ एंगल वधिया है। अच्छा, 7 साल का बच्चा सही होते थे तो कोई शक भी नहीं करेगा। उस पे वाकई कोई शक नहीं करता सिवाय उसकी माँ के। मामा तो हर वेले शक च पईयां रहिंदियां, वो अपनी होवे या बच्चियां दी होवे। उस लड़की का नाम है जैनी, जो एक सितम रसीदा नर्स अदीला की साहबजादी है। लेकिन जैनी उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करती और डॉक्टर फरा के बेटे जुनैद से भागकर शादी कर लेती। जामिन और जुनैद आपस में दोस्त थे,
बल्कि जुनैद ने तो एक बार उसको पैसे देकर ये पता करवाने की भी कोशिश की कि आखिर ज़ैनब की माँ ने उसको बंद कहाँ पे किया हुआ है। ते जामन ने उहदे सिर च इट नहीं मारी कि मैं भी उहदा आशिक हूं, उहदे रुके मैं पहुंचाऊं। अच्छा भाई, आपकी तबीयत नासाज है? हाँ जी, ठंड लगी है, पसलियां नूं तकलीफ है। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं सोच रहा था कोई रखना नहीं डाला आज आपने हमारी। एक बात पर हैरान हूँ, जिस तरह के नावल लिखने वाले कहानी के अंदर अपनी बातें डालकर उसकी कहानी का मज़ा किरकिरा कर देते हैं ना जी, आपके अंदर भी बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं कि मैं कहानी का लुत्फ़ नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर वाजे कीजिए। बस इन जुहला को ज़रा रोक के रखिए, बात करें, लेकिन कहानी भी तो आगे बढ़ाइए ना। भाई आप दोनों खवातीन ना बोलिए, वो नाराज हो रहे हैं। ये लड़कियां तो ढंग की बात कर लेती हैं, मैं इन बेवकूफ़ों की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, असी बेवकूफ हाँ, तू की जिमीदार अखबार कटदा रही। अरे बेवकूफा ते अपना कद मिस्र के जसूसा वाला है। अश्क साहब, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। भाई आप ये जो बातें करते हैं ना हंसने वाली, जितनी आप में तौफीक है और समझ है कीजिए, लेकिन खुदारा इस कहानी को भी समझिए। जामिन ज़ैनी को बहुत ढूंढता है क्योंकि जामिन के पास ज़ैनी के लिए एक अमानत है जो ज़ैनी की माँ अदीला ने मरने से पहले उसके पास रखवाई है। अश्क साहब, इस कहानी में एक और करैक्टर भी है, डॉक्टर फरा। जी बिल्कुल जी, जो अपने शौहर को छोड़कर इस गांव में आ जाती है क्योंकि उसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है। इसमें एक और बहुत भयानक कैरेक्टर है तलाल, जो बहुत ही जालिम इंसान है। तलाल चौधरी जेड़ा कुमारी वाले की तंजीम साजी करन गया सी। नहीं नहीं, ये तलाल साहब, इनका ताल्लुक खानेवाल के करीब एक जगह है जिसका नाम है टिब्बा अली बख्श। वहां से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपने चचा और ताया को कत्ल करवा दिया और ये डॉक्टर फरा के कजन है। और अब ये डॉक्टर फरा के खून का प्यासा है, जायदाद के लालच में। इसमें कोई शक नहीं कि तलाल बड़ा जालिम है और वो अपने खूनी रिश्तेदारों को जायदाद के चक्कर में कत्ल करवा देता है। बिल्कुल, लेकिन अली अकबर नातिक ने आखिर में उसे अंजाम से दो चार दिखाया है, गैर मुतहर्रक हो जाता है, उसकी जायदाद मुंशी हड़प कर जाता है। यहाँ मुझे लगता है कि वो एक मुसले के रूप में मुकाफात अमल का सिलसिला दिखाना चाहते हैं। मैं भी कमा जो इख्तलाफ ना करदा ते तेनू नींद कित्थों आउणी सी। पूरे लवाज माद दे नाल जर्दा पक्या होवे ना ते ऐंदा बंदा फिर भी नुक्स कड्ढन दिया हुंदा। मरब्बा कुछ ज्यादा डाल दिया। बाज़ औक़ात कारी को रिलीफ देने के लिए भी पोइटिक जस्टिस दिखाया जाता है। और यार मैं तेरी उर्दू तो पहलों तंग सा, तू अंग्रेजी भी शुरू करती है। वो वीरे आन दे अंग्रेजी हो सकता थोड़ी देर बाद नावल च अंग्रेजनी भी आ जाए। सीधे सीधे लफज बोल, छड़ियां टाइयां ते स्टिकर लाउण वाले आ। अश्क साहब, ये जज़ा और सज़ा का मामला ज़िंदगी में ऐसे ही चलता है, लेकिन कहानी में से बाई फोर्स नहीं होना चाहिए। और यार तेनू बाई फोर्स इस सेगमेंट चो कढ़ना चाहिए। कम अज कम हाथी खोल ला, हाथ दी उंगलां कट्टियां। अच्छा, मैं भी सवाए चौधरी निसार दे इंज किसी ने बहंदिया नहीं वेख्या। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ जिस दिन रिहा होना आवे जेलर दे मुंह ते थप्पड़ मार देता है, फिर 6 साल अंदर ही। इनकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है। कहीं कहीं कहानी की बुनद से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं इस किताब में जगह जगह दानिश के मोती बिखरे हुए। अच्छा, तो वो मोती इत्थे बिखरे हुए है, वो दानिश तो बाहर गली च लभ रहा सी। अश्क साहब, केड़े दानिश दे मोती? जैसे एक जुमला है, जब इंसान लोगों से बेनियाज हो जाता है तो खुदा से भी बेइतनाई बरतता है। वाह वाह वाह, जुमला तो बहुत खूब है। भाई भी हाथ खोल दे, कड़ी चोरी दी बननी। एक और फिक्रा है, इंसान समंदरों में रंगों की पहचान खो देता है और कश्तियों में मट्टी की बात। अच्छा, ये जुमला देखिए कितना खूबसूरत है कि मैं रास्तों के निशेब से मंजरों की काशे काट लेने का माहिर था, मगर दुनिया ने मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। शेजा जब फरेफ्ता होती है जामिन पर तो सुनिए क्या कहती है। फरेफ्ता की हुंदा है जी? किसी पे मर मिट जाना। अच्छा अच्छा, फिर तो मैं भी फरिफ्ता। एक नन्ना सा फरिफ्ता। मैनू बड़ा गल्लां दा पता ही लगदा, चील दी बाची ते टैटू बने। शेजा जामिन से कहती है, तुम अपनी खूबसूरती किस बेरहमी से छुपाए रखते हो। हाँ। तुम पानी से भरे बादल हो जो खुश्क जमीनों की तलाश में रहता। बाबा की शायर ने कहा कि मैं एक धरती सरदी बलदी, तू में बदल बेपरवाह, दिल दी नगरी मिन्नतां कर दी, अपने हाथ से कट के बखा। अशराफिया की पार्टियों में जो उन्होंने जिन्स जदगी देखी
उस पर देखिए क्या अच्छा जुमला कहा है। इरशाद, उन ख़वातीन की हालत उन भेड़ों जैसी थी जिनका दूध धोने की वजह से हड्डियाँ निकल आईं और इन हड्डियों को छुपाने के लिए उनकी ऊन नहीं उतारी गई। हाय हाय, थोड़ी गल मुक गई है जी, रख लो थे बाम। अश्क साहब, मुझे इस नावल का वो हिस्सा बहुत पसंद है जब जामिन और शिजा की मुलाकात होती है और शिजा उसको अपने मामला से दूर रहने का कहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे वैसे करीब? अच्छा जी, और क्या सुनाओ? वो सुनने वाला नहीं, अपने मोबाइल जो क्लिप ही बहा दो। भाई वो पढ़ने वाला है। क्या अगर आप इस तरह करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हम लखनऊ से। हाँ, साढ़े को पूरी किताब दे पैसे नहीं, ओने के वर्के दे थोड़े पैसे ले लो। अश्क साहब, इन बेवकूफ़ों को क्या पता कि नातिक साहब ने जो इंसानों के इश्किया या सियासी मसल की जो जज्बात दिखाए हैं वो किसी प्रोपोगंडे का नतीजा नहीं है, बल्कि फितरी तौर पर हालात और माशरे ने जिन्हें जन्म दिया वही उन्होंने पेश कर दिया। माया वाला कुर्ता पा के ना पाड़ता, कहता मेरा कुर्ता मेरे ही अगे आकड़न दे। अश्क साहब, पूरे नावल चो मनु हिस्सा बड़ा प्यारा लगा। कौन सा? जो जामन दी मां ने उन्हें सोना दे नाल 500 रुपया दिता कि पालिश करा के बेची, छेती विकेगा। भाई खुदा का नाम, ये तो आपने खुद से कहानी घड़ ली है। उसकी माँ तो उस अमानत के मामले में बहुत टची थी। बीरे जामन नू जैनी लब्बी या कि नहीं लब्बी? मिली। अच्छा, जामिन को जैनी मिली, मगर 25 साल के बाद। की फायदा, और वो भी किसी के तवस्सुत से। नहीं, प्लीज सर ये मत बताइएगा कोई तीसरा शख्स कौन था। क्यों? वरना कहानी का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। सर आप बस इतना बता दें कि जामिन को जैनी के बाद जिससे मोहब्बत होती है वो जैनी के ही वजूद का हिस्सा थी। ओहो, अब रह क्या गया बताने के लिए? तो अश्क साहब, नातिक साहब का कमाल देखिए कि नावल में इतने सारे किरदार हैं और उनकी बुनत उन्होंने इस तरीके से की है कि कारी को हर किरदार से एक मोहब्बत भी हो जाती है और दिलचस्पी भी कायम रहती है। बिल्कुल। लेकिन अश्क साहब, एलिट क्लास की पार्टियों में जिनसी सरगर्मियां और बालों में क्लिप लगाकर बासर लोगों के क्लिप बनाना और फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चोट है हमारी NGOs के किरदार की। ख़वातीनो हज़रात, हम माज़रत ख़्वाह हैं कि कराची से दुबई जाने वाली फ़्लाइट फ़नी खराबी की वजह से 3 घंटे लेट है। कार जड़े अंब ठंडे कीते सन जाके चूर पाओ। भाई समा हम माजरत ख्वाह हैं। लेकिन अश्क साहब, ज्यादती होगी अगर नातिक साहब के उस पहलू का जिक्र ना करें जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, देहाती ज़िंदगी का बयान। मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने देहाती ज़िंदगी का बयान अपने नावल में सही तरीके से किया है तो नातिक है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन। बात ते दूर दी गल है, ये ते मुंह चो बुरकी छीन ले और एडी जोर दी छीन दे अगले दा भीड़ दे हाथ च आ जांदा। दाद देनी चाहिए अश्क साहब, 80 की दहाई का मंजरनामा है इस नावल में, और उस वक्त इस माशरे में जो जो बुराइयाँ आ गई थी, ये लाकानूनियत, नशा, हवस, ये उरियानी, पता नहीं क्या अफगानिस्तान के मामलात और बाकी चीजें। सबसे बड़ी बात ये जो सो कॉल्ड कॉमरेड और ये तरक्की पसंद और बाएं बाजू के लोग, इनकी मुनाफिकतें, ये फिरका वारियत, ये अफगान वार के नाम पर धंधे, इन सब का पर्दा नातिक ने बखूबी चाक कर दिया। प्रोफेसर हथ अंदर इंज जाता जिवें कुकड़ी बच्चे नूं परा थले लई। मुझे तुहानूं पता है जेब कतरे की निशानी है, इंज उतली जेब चो पैसे सानी ना निकल आंदे। मुझे डाकू कार च तवलियां दी फोटो बना लेंदे ने लोकी, मैनूं खान साहब समझण। अच्छा, मैनूं हुण समझ लगी पैंट ढिल्ली आ, इंज करके वो फड़ी हुई। एक वक्फा हमारे साथ ही रहिएगा। अश्क जहाज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। हाथीनो हजरात, कहा जाता है शरीफ सिर्फ वो है जिसे मौका नहीं मिलता, और जो मौका मिलने पर भी शराफत का लबादा ओढ़े रखे, उससे ज़्यादा गैर दिलचस्प आदमी और कौन हो सकता है। विलियम फॉकनर कहते हैं हर इंसान के अंदर एक हैवान है और हम वक्ती तौर पे हैवान को सुला देते हैं। जैसे ही मौजू हालात मिलते हैं वो उठ बैठता है और अपना रंग दिखाता है, जैसे बिल गेट्स साहब अपना रंग दिखा रहे हैं। आदाब जनाब। प्यार दे 2 मिठड़े बोल बोले ने ते सानू हैवान कह दिता जे। हैवान ते खुलेआम मुहब्बतां करदे फिरदे ने, ये सारियां पाबंदियां इंसान ते ने। मेरा ते पैगाम में मुहब्बत जिथे तक पहुंचे।
ये सारियां पाबंदियां इंसानां ते ने, साडे ते नहीं। भाई मशीन भाई हमारी तरफ से कतई कोई कदगन नहीं, उस किस्मत की मारी से इजाजत लो, फिर जो मर्जी करते फिरो। वो कैसा बेवकूफ आदमी है तू, ਉਹ बीवी दे कोल बैठ के ते बिल्ली नू पुचकारो ते ओदे कोलों हसद करन लग पैंदी है। अच्छा, मुझे वैसे आपकी बातों से सख्त इख्तलाफ है। ये मिजाज की अदम मुताबिकत हर सोसाइटी में होती है। आपने पता नहीं किन दानश्वरों के नाम लेकर हैवानियत से तबीर कर दिया। भाई ये समझने के लिए आपको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ना पड़ेगा। खुदा ना करे ये वक्त आप पर भी आए। लोग गल हैवानियत दी हो रही है। ए हवन्नक कौन है? ये अफ्रीका के जंगलों के कबीलियां दा सरदार है, तो बगावत हो गई, दस के इत्थे आए। बेवकूफ, तुम्हारी हिमायत कर रहा हूँ और आप मुझे हैवान कह रहे हो। ओए बिला वजह दरख्तां नू टकरा मारन वाले भेडू। हर इंसान के अंदर हैवान हुंदा है जी। भाई हम नहीं कहते, ये हॉब्स कहता है। यार ये बात यहाँ फिट नहीं होती। ਇਹਦੇ अंदर फिर भेडू जे लोगों के चोरी पट्ठे खा जाता जी। भाई बिल साहब, हमने तो आपको मुखातिब ही नहीं किया। इतनी बिजली महंगी हो गई, तानू अजे भी बिल्कुल डर नहीं लगता है। अच्छा मलिंडा, तो क्या ये अफेयर इनकी तलाक की वजह बना? इस नामुराद रवैये ते मैंने पहले ही शक सी, बल्कि पूरा यकीन सी, पर मैं कोई रोला नहीं पाया और चुप चुपीती तलाक ले ली कि नक बच जाए। मलिंडा ने रोला पाया। नक ते बच गया, मैल अखां च सी। इस नतीजे दी अखां च इन्नी मैल सी कि बकरी सिर चुका के दे सामने घाह भी नहीं खांदी सी। मैं उन्होंने आदत पाई सी हज फड़ के खुआन दी। इश्क साहब तुसी इन्ना क्यों हस रहे जे? भाई मुझे तो मलिंडा का अंदाज़ गुफ्तगू बहुत भा रहा है। की गुफ्तगू सुनदे पे? ओदे गम च वेखो मलिंडा दा की मुंह हो गया जिवें अचारी अंबी नूं उल्ली लगी। ओए तुसी कहंदे हो मेरी अखां च मैल है, ए जितों दी मेरे कोल आई है मैं दावे नाल कहना रिवर मिसिसिपी वांगू पाक है। आपको किसने कहा मिसिसिपी पाक है? और वगदा पानी पाक हुंदा बाजी। झूठ बोलदा है, बिल्कुल पाक नहीं। मिसिसिपी रिवर ओ ते मैं सियानी सा, एदे पीछे नहीं लगी, नहीं तो शाम हुंदी सी ते मेनू कहंदा सी आप बोतला पीन चलिए। ओए यार बोतला के बोतल ओते चौक दे विच गोली वाला सोडा बड़ा मशहूर सी, ओनू खोलदे सन ते आवाज दा मजा लईदा सी। मलिंडा आई लव यू, मैनू छड्ड के ना जाई। तू चली गई ते बेड दियां शीटां तय करके अलमारी च कौन रखेगा? बिल गेट्स के मसाइल तो देखिए, इतने तो अंदरून शहर के नहीं जितने आपके हैं बिल मियाँ। वो मसला दी दाल नू एडा सोहना तड़का लांदी है ना। ओए हुण मैं उन्हां थोम दियां तोरियां नू की करांगा? इस चंदरी कोलों बनवाई। 27 साल तू ही कटियां ने तुरियां, तू की खट लिया? ओए तेनू एदा की पता? ए ते विहड़े च बैठ के जदों गंढे चीरदी सी ना, पूरा मल्ला अखां दा पानी कढाण वास्ते विहड़े च आया। ओ इश्क साहब तुसी इन्ना क्यों हस रहे जे? बिल गेट्स तो देखिए, तुरियां गंढे थोम सारा पता। ओ मनु ते बिल गेट्स घट सब्जी मंडी दा ताजर बहुता लगदा है। 20 साल तो पूरे 20 साल तो एदियां शिकायतां मैनू मिल रही। हर 2 महीने बाद काम वाली काम छड़ के चले जाती। झूठ, सिर्फ काम वाली नहीं जेब वाली भी छड़ गई है। ओ मैनू ते असले जम्मन वाली भी छड़ गई है। बस इन्हां सारियां तो बगैर और अपने वेड़े च इंज ही घूमी जिवें लाटू घूमदा है। यार आप अपने करतूत जानते थे तो ये झूठ पकड़ने वाली मशीन लानी जरूरी थी। ओए ने खरीदी सी मेरा पोल खुलवाने वास्ते। खरीदी इन्हें सी, चंगा भला मैं बिजली नाल चार्ज हुंदा था, इन्हें मैनू मसरां दी दाल ते लाता है। बिल गेट्स, आपको एक बात का तो पता चल गया? केड़ी? कंपनी चलाने और बीवी को खुश रखने में क्या फर्क है? और मैं अपनी बुढ़ी नू खुश नहीं रख सकिया, लोकां दियां बुढ़ियां ते बहुत खुश ने। और ताड़ियां जसूसियां छड्ड के हुण फेसबुक ते बैठियां हुंदियां ने और हैप्पी। आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ज़ोम ले डूबा, बड़ा फख्र करते थे इस कंपनी पे। ये कौन है कि हिंदी दुकान तो मजून चोरी करने लगा? मलिंडा, मैं बिल गेट्स मानने को तैयार नहीं, ये बिल गेट्स है, ये कहीं से बिल गेट्स नहीं हो सकता। मलिंडा, गर्मियां ते मैं रो धो के कट लांगा, अगलियां सर्दियां नू रजाइयां कौन नगंदेगा? नखत्ती कदों करवाई? नखत्ती मैं नखत्ती हुंदी ना,
बिल मेरे पीछे लूट लूट ना फिर रहा हुंदा। इस चंदरी दी खातर इन्हें मेरी जवानी बर्बाद करके रख दी। व्हाट? हाँ, तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਜੇ ਕੋ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ। ਟੇਬਲ ਤੇ अबीन खराब हो गई है। अच्छा, आपकी आवाज सुन के लग रहा है मशीन का पेट खराब हुआ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ दोनों क्या? सच्चे खब्बे दोनों की भी करनी है। सच्चे खब्बे फाइला साइन ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਲਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ। एक मिनट ठहर जा, मेरा साथ लगा तो यानी खा 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 खा। इसमें इतना घबराने की बात क्या थी? फाइल साइन तो कोई काम होगा। आपको भी इसमें क्या बुरी बात लगी? ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। मोरा मोरा स्टैंप। मोरा का भी पता है। ਮੋਰਾ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਜੇ? वो मलिंडा है इसलिए। इस ऐनक वाले बावे दी मैं शिकायतां भी लाइयां, पर की करा? पैसे दे के मैनू चुप करा दिंदा सी। पैसे तू तो चुप रह, तलाक ले रही, हुण तेरा कोई कनेक्शन नहीं है। खुद छड्या इनू। अरे मैंने ना छड़, तू चले चाली देश की एडी सोहनी मांझदी सी ना। इतना अरसा इनका अफेयर रहा, आपको कभी शक नहीं गुजरा चीट होती रही आप? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। क्या हुआ? बस ना पूछो तुसी। चलो रहन दो, कहन जो नहीं तू मामा लगना। बताने दे। एक रात 3 बजे मैं घर आई, पता मैं की वेख्या? क्या देखा? एक बार आप खामोश ना पूछो मेरे कोलो, बस ना पूछो। चल रहन दो, कह जो नहीं। बताने दे उन्हें। मेरे तोते उड़ गए। दोनों आप चुप रहिए। ऐसा क्या हो रहा था कि इनके तोते उड़ गए? एक दोनों पिंजरा खुला छोड़ के नस गए। ਤੇ ਮੈਂ मेरे तोते उड़ गए। ਉਸਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। बिल गेट्स जानदारी से एक बात बताइए, ये कितना मुआशका है आपका? और ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ झूठ पकड़ा गया। क्यों जी, क्या हुआ मशीन साहब? ये पैसे दे भूखा। नहीं, ये बात गलत है, हम इससे एग्री नहीं करेंगे। जितनी चैरिटी ये करते हैं इसमें तो कोई शक ही नहीं। यार चैरिटी को छोड़े, इश्क के नाम पर धोखे करते शर्म नहीं आती आपको? ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਲਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ? ਮਲਿੰਡਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਪਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਬੂਹੇ ਚ ਵੜਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਗਿੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਨਾ ਪੈਰ ਪਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਵੇ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ? तेरी खातर तंदूर च रोटियां लांदी लांदी ने मैं अपना बूथा सड़वा लिया सी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਐ ਨਾ ਸੜੇ। ਝੂਠ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਤੰਦੂਰ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਆਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਮਲਿੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਹਿਰਾਵਾਂ 'ਚ ਡਾਚੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। अब इनको दाचियों का भी मालूम होगा आपको। आए ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੜਾਈ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੇ ਭਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। अच्छा आपने अच्छा हुआ बता दिया। ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਵੇਗੇ। अच्छा सारे काम उसी ने किए, इसने कुछ नहीं किया? ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। क्या? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ले नहीं होना सी है इस काबिल। तेनू क्या सी ना चुड़ैल को तलाक ले के आई मेरे कोल, एवे मेरा प्यार दी पिंगा पांदा रे। थोड़े टाइम पहले मुझे तो पता लग जांदा ना, तेरे छड़ के चले जांदी टाइम टाइम, इन्ने बच्चे ना जमदे। कितने के बच्चे जम ले नहीं, झूंगे जो सिर्फ दो। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਾਦਰੀ ਭਰੇ ਜੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਬੋਲ ਬਾਬੇ ਖੋਟੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਲਾਲ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। इसके साथ ही आज
के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।